Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to e-learning Rise and Shine School Grade 9 Chemistry course. I'm your chemistry teacher Fraz Anjum. I wish you a very happy Eid and Eid Mubarak to all, and I hope that you enjoyed your Eid. So let's start. This is a continuation of chapter number 2, Chemical Combinations, textbook page number 29 to 33. The topic we will cover today, balancing the chemical equation. So the most important topic that how to balance a chemical equation, because for the calculation the equation must be in the balanced form. Unbalanced equation cannot give the correct answer for the calculation. So let's start. What is chemical equation? First of all, chemical equation is a shorthand method of describing or expressing the chemical reaction in terms of the symbols, formulas of the substance involved in the chemical reaction. First of all, one by one, I'm going to explain. Number one, chemical equation. This is the chemical equation. It's a shorthand method to describing the chemical reaction. So overall, this is called chemical reaction. In the term of the symbols, so symbol means symbol of, this is Ag. Ag means silver, H hydrogen, S sulfur. So these are called symbols. And formula. Formulas means this is the formula of hydrogen sulfide. Okay, what is it? Hydrogen sulfide. Okay, hydrogen sulfide, then silver sulfide. So this is called formula. Like H2 is a formula of water, NaCl is a formula of salt. So this is called the formulas. Okay, so all the formulas, symbols, and the combination of collection of this called chemical equation. Between this is a, you can see the sign plus means they are going to combine it, after that going to be take it. So what is it overall? All together the combination of all these things, symbol, formula, sign, arrows, everything is called the chemical equation. So this is the form of the chemical equation. This is a shorthand method to describe the chemical equation. So let us start. Number one, you can see on your left side AgN H2S. What is it? Called reactant. What is it? Reactant. So I'm going to give you the example first. Like when you start anything for the cooking, the raw material is called your reactant. Okay, so before reaction, the substance you have to mix together this reactant called so this substance called a reactant. Okay, such as you are going to mix with the in the Eid days, must you have biryani. Okay, so must take the rice, meat, and the spices. All these are called at the moment reactant. After mixing and cooking, the biryani is come. So biryani is called product. Okay, so before reaction, the substance called reactant, and after the reaction, the substance called product. Okay, so before reaction, you have to write on your left side on the equation, and the arrow indicate that it yield. Okay, means to produce. After the producing, what substance you got, this called product. Okay, so in order to, I am going to explain that केमिकल रिएक्शन से पहले जो भी अशिया आपके पास मौजूद होंगी वो कहलाएंगे रिएक्टेंट, और उसके बाद जो चीज़ मिलेगी, जो चीज़ बन जाएगी, वो कहलाएगी प्रोडक्ट. जैसे मैंने अभी बिरयानी की मिसाल दी, तो कच्चे चावल, कच्चा गोश्त, मसाले वगैरह, ये सारी चीज़ें, ऑयल वगैरह, ये सब चीज़ें मिला करके क्या होंगी, रिएक्टेंट है, यानी रिएक्शन से पहले, पकाने से पहले. उसके बाद आपने कुकिंग की उसकी रेसिपी के मुताबिक बना लिया, बनाने के बाद जो चीज़ बनी वो कहलाएगी बिरयानी. तो बिरयानी आपका क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट. सो जहन में रखिएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. अच्छा, इसके अलावा केमिकल इक्वेशन के अंदर दो तीन चीज़ें और होंगी. देखें, ये हमारे पास आपको मैंने बोला था सिंबल. सिंबल क्या होता है, जो सिंगल हो, अकेला. ठीक है, तो ये Ag सिंगल एलिमेंट है, इसको हम सिंबल कहते हैं. और H2S क्या है हमारे पास,
कॉम्बिनेशन फॉर्म है, इसलिए इसको हम फार्मूला कहते हैं, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला और कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे फार्मूला यूनिट भी हो सकता है यहाँ पर, कभी केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा केमिकल फार्मूला, ये हमारा सिंबल ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब रिएक्टेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि इस सिंबल के साथ एक 2 लिखा हुआ है। ये 2 इंडिकेट कर रहा है कि ये 2 मोल हैं, ये मोल इंडिकेट करता है। ये कहलाता है कोफिशिएंट्स। व्हाट क्या कहलाता है? कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये भी आपका कोफिशिएंट, यहाँ पर कुछ लिखा होता तो कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, एज्यूम करेंगे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा प्रोडक्ट जो हमारा, सॉरी, ये पूरी जो चीज़ है ये हमारे पास 1 को इंडिकेट कर रही है कि 1 मोल है हमारे पास, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो 1 है, नहीं तो 2 3 4 5 6 वट एवर, यहाँ पर जो भी लिखा होगा ये हमारा कोफिशिएंट्स कहलाता है। अच्छा, ये हमारे पास एरो जो केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को जाहिर करती है कि टेल की तरफ रिएक्टेंट होता है और हेड की तरफ हमेशा प्रोडक्ट होता है। ध्यान में रखिएगा ये बात। टेल पे हम, यानी दुम की तरफ हम रिएक्टेंट लिखते हैं और टेल की तरफ हम प्रोडक्ट लिखते हैं। और इसको हम एरो को केमिकल लैंग्वेज के अंदर हम कहते हैं ईल्ड। ईल्ड से जाहिर करते हैं कि जैसे हम कैसे पढ़ेंगे, 2Ag प्लस H2S ईल्ड Ag2S प्लस H2, ठीक है। तो रिएक्टेंट ने ईल्ड किया यानी प्रोड्यूस किया और क्या प्रोडक्ट बनी? ये प्रोडक्ट बनी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही आपको ये तो 2 इसके साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 और नज़र आ रहा होगा जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें, ये कहलाता है सबस्क्रिप्ट। क्या कहलाता है? सबस्क्रिप्ट। ध्यान में रखिएगा, ये क्या है? सबस्क्रिप्ट। तो ये सबस्क्रिप्ट है, ये नंबर ऑफ एटम को जाहिर करता है, और ये कोफिशिएंट है जो नंबर ऑफ मोल्स को जाहिर करता है। इस तरह हम पार्ट्स ऑफ इक्वेशन हम यहाँ पे बयान कर सकते हैं। तो कितने पार्ट हो गए? मेजर 2 पार्ट है, एक रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कोफिशिएंट मोलों को जाहिर करता है, और उसके साथ सबस्क्रिप्ट जो होता है वो नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर करता है, तो मोल्स और एटम। और एक जो मेन पार्ट है हमारे पास वो है ईल्ड, एरो का। एरो को हम ईल्ड से जाहिर करते हैं। नाउ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले रिएक्टेंट क्या होता है? केमिकल यू स्टार्ट विद बिफोर द रिएक्शन। जैसे आपको मैंने बताया कि वो केमिकल जो रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले आपके पास मौजूद होंगे वो कहलाएंगे रिएक्टेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। कहाँ लिखे जाते हैं? इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर। प्रोडक्ट, द न्यू केमिकल्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन, यानी रिएक्शन के बाद जो चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट कहलाती है, और ये कहाँ लिखे जाएंगे? राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब आ जाए सबस्क्रिप्ट और कोफिशिएंट में क्या फ़र्क है? सबस्क्रिप्ट शो हाउ मेनी एटम ऑफ एन एलिमेंट आर इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम मौजूद हैं वो सबस्क्रिप्ट को, यानी जो नीचे लिखा होता है, ठीक है, उसको जाहिर करते हैं। जैसे H2O में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम, आपको बोला कुछ नहीं होता तो 1 एज्यूम करेंगे, 1 एटम है किसका? ऑक्सीजन का। तो ये क्या है? सबस्क्रिप्ट, ठीक है। 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम किसका है? ऑक्सीजन का। तो सबस्क्रिप्ट किसको जाहिर करता है? नंबर ऑफ एटम्स को। आ जाए अब कोफिशिएंट। कोफिशिएंट शोज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन द पर्टिकुलर केमिकल। मॉलिक्यूल्स और मोल से भी हम जाहिर कर सकते हैं, यानी इसके अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मीन्स देयर आर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी पानी के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स को जाहिर करता है, यह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जाहिर करता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आसान सी तरकीब याद रखें, नंबर ऑफ मोल्स। आ जाए जी, केमिकल रिएक्शन ये शो कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसमें दिखाया गया है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से मिलकर पानी की 2 मॉलिक्यूल बना रहा है, सही है। तो यहाँ पर देखें, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 2 एटम है हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन गैस यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। क्या कहलाता है? डायटोमिक। डाई का मतलब 2, एटॉमिक का मतलब एटम, तो 2 एटमों वाला मॉलिक्यूल, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। लेकिन ये कितने मिल रहे हैं रिएक्शन के दौरान? 2 मिल रहे हैं हाइड्रोजन के लिए और 1 है ऑक्सीजन का। तो अब मिलता कैसा है? फार्मूला क्या है? पानी का H2O, ध्यान में रखिएगा। तो ये ब्लू कलर का जो एटम है किसको जाहिर कर रहा है? ऑक्सीजन को, यानी ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और इसके साथ कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है? 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, यानी ग्रीन वाले, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए लाजमी H2O बनाने के लिए। तो क्या हो गया? एक इन दोनों के साथ मिल गया, एक
इन दोनों के साथ मिल गया, तो टोटल कितने बन गए हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो इसलिए हमें कितने चाहिए हैं, 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास 4 हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो टोटल 1 2 3 4 हाइड्रोजन है और हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो H2O H2O यानी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ने एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर पानी के 2 मॉलिक्यूल बना लिए, ठीक है। और दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 मोल्स ऑफ वाटर बना लेता है, ठीक है। ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी। अब आ जाए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों ज़रूरी है। ध्यान में रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा था, जो क्या कहता है, इन अ केमिकल रिएक्शन, RHN रिएक्शन का एब्रीवेशन है, ठीक है, यानी मुखफ़फ़ है। तो इन अ केमिकल रिएक्शन मैटर नीदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी हम मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, द नंबर ऑफ type of atom going into the reaction must be the same as the number of type of atom coming out, यानी रिएक्शन में जो चीज़ आपस में मिल रही है, जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए इस लॉ के मुताबिक, ठीक है। इस वजह से हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना लाजमी है। किसको ओबे करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। सो इन एन इक्वेशन ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इट इज बैलेंस। अगर वो ओबे करती है तो हम कहेंगे बैलेंस, अगर वो ओबे नहीं करती तो बैलेंस नहीं है। यानी जितनी चीज़ें रिएक्शन की तरफ है, रिएक्टेंट की तरफ है, उतनी ही प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए, तो ही तो हमारा इक्वेशन बैलेंस है, नहीं तो नहीं। तो 1 बाय 1 करके हम बैलेंस करना शुरू करते हैं, उसको सिखाते हैं। नंबर 1, ये जो आपको दिखाई गई है ये अनबैलेंस है। ज़रा देखिएगा, ये रिएक्शन बता रहा है कि मीथेन CH4 रिएक्ट कर रहा है वाटर ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। अब जैसे आपको बताया कि रिएक्टेंट साइड पे क्या चीज़ है, CH4 है और O2 है, यानी मीथेन है और ऑक्सीजन है। ज़रा शुरू करते हैं, CH4 तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। यानी एक कार्बन का एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, और साथ में क्या चीज़ है, ऑक्सीजन के 2 एटम, हाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। इस तरफ देखते हैं प्रोडक्ट साइड पे, कार्बन का 1 एटम है, कार्बन 1 एटम हो गया। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, यहाँ पर 2 एटम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और 1 एटम किसके साथ, पानी के साथ। और हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1 कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम है। तो ये क्या, ये बैलेंस है। देखें, 1 कार्बन, चलो ये तो बैलेंस हो गया। 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बैलेंस तो नहीं हुआ। 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करें, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट के साथ, जी। तो मैं आपको बता रहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। इस तरह तो ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एटम ही बैलेंस नहीं है। ये एक कार्बन है, ये 1 कार्बन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। तो फिर हम क्या करते हैं कि बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, वो अभी आपको डिस्क्राइब करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे आसान सा रूल क्या है, सिंपल उससे शुरू करें, द मिनिमम नंबर से। तो मिनिमम नंबर क्या है, 1। 1 से जो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा। तो दूसरा मिनिमम नंबर क्या हो गया हमारे पास, 2, यानी सबसे छोटे नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है जो अनबैलेंस चीज़ें हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखें यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1, ये तो बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब हमने क्या किया, उसके लिए आगे 2 लगा दिया, यानी हमने ध्यान में रखना कोफिशिएंट को चेंज करना है। किसको चेंज करना है, कोफिशिएंट को। तो कोफिशिएंट को चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो ये 2 इस सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 ज़ा 4, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन के भी अब कितने एटम हो गए, 4 एटम हो गए। और यहाँ पर जब जब देखेंगे तो ऑक्सीजन इस 2 की वजह से इस ऑक्सीजन के लिए B2 हो गई, यानी ये 1 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये 2 इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी हाइड्रोजन से भी, और ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी हाइड्रोजन वाटर के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल। तो इसके मतलब क्या हुआ,
कि वाटर के पास आपके दो ऑक्सीजन होने चाहिए लाजमी, इस मॉलिक्यूल के लिए और एक दूसरे मॉलिक्यूल के लिए, इस टू लगाने की वजह से। सो हमारे पास टोटल कितने हो गए, टू वन ज़ा टू यानी दो ऑक्सीजन, एंड टू टू ज़ा फोर यानी दो हाइड्रोजन इस तरफ हो गए। तो अब ज़रा दोबारा ट्राई करें, क्या ये बैलेंस हो गया? यहाँ पर ध्यान में रखिएगा ऑक्सीजन कितने थे, एक था, तो ये बैलेंस तो नहीं हुआ। यहाँ पर टोटल दो हो गए थे, यहाँ पर हमारे पास टोटल दो हैं, तो हमने क्या किया, इसको भी टू लगा दिया, तो टू टू ज़ा फोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ऑक्सीजन है दो। ठीक है, अब ज़रा शुरू करते हैं। तो ये दो यहाँ पर लगाने से, ये दो यहाँ पे लगाने से टोटल हमारे पास कितने हो गए, ज़रा चेक करेंगे पहले रिएक्टेंट साइड पे। तो रिएक्टेंट साइड पे कितने हो गए, टू टू ज़ा फोर यानी चार ऑक्सीजन हो गए, तो चार ऑक्सीजन यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर टू वन ज़ा टू, दो ऑक्सीजन यहाँ पर हैं और दो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो टोटल कितने हो गए, चार ऑक्सीजन, तो चार ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए। अब ज़रा पूरी इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो एक कार्बन, एक कार्बन, सही है, चार हाइड्रोजन, टू टू ज़ा फोर, चार हाइड्रोजन, उसके बाद टू टू ज़ा फोर, चार ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, प्लस टू वन ज़ा टू, दो ऑक्सीजन वाटर के साथ। तो इस तरह ये बैलेंस हो गया। तो ये हमें खुद से लगाना है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर से शुरू करेंगे, आगे तक जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, रूल। तो रूल ऑफ द गेम मतलब इसके जो रूल्स हैं, सबसे पहले मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अपनी तरफ से कुछ नहीं इजाफा करेंगे, जो चीज़ दी हुई है बस वही रहेगी। प्रोडक्ट में या रिएक्टर में कोई इजाफा नहीं होगी या कोई कमी नहीं होगी। दूसरी चीज़, सबस्क्रिप्ट कैन नॉट बी एडेड, रिमूव्ड और चेंज। जो सबस्क्रिप्ट होगा, नंबर जो होंगे, नंबर ऑफ एटम को जो जाहिर करता है, यानी H2O में जो टू है वो चेंज नहीं होगा। यू कैन ओनली चेंज द कोफिशिएंट, सिर्फ क्या तब्दील कर सकते हो, कोफिशिएंट तब्दील कर सकते हो। कोफिशिएंट का मतलब यानी जो भी फार्मूला या सिंबल है उससे पहले जो लिखा होता है। तो कोफिशिएंट कैन ओनली गो इन द फ्रंट ऑफ केमिकल फार्मूला, यानी जो पहले लिखा होगा, नेवर इन द मिडल ऑफ द फार्मूला। फार्मूला के दरमियान में कोफिशिएंट कभी भी तब्दील नहीं हो सकता, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिप हैं। ट्राई बैलेंस फार्मूला फर्स्ट, सेव फ्री एलिमेंट फॉर द लास्ट। सही है, फार्मूला के अंदर जो होंगे वो पहले करें और जो एलिमेंट रह गया उसको अकेला जो होगा वो बाद में रखें। इफ सेम पॉलीएटॉमिक आयंस अपीयर इन द बोथ साइड, अगर पॉलीएटॉमिक यानी पॉलीएटॉमिक जैसे हमारे पास SO4 आएगा, आपके पास NO3 आएगा, OH आएगा, ये पॉलीएटॉमिक आयंस कहलाते हैं। अगर ये हैं तो इन दोनों को आखिर तक ना छेड़ें, यानी ऐसे ही रहने दें। इज यूजली ओके फॉर द ट्रीट इन द वन यूनिट, यानी एक कंसिडर उसको करेंगे। जैसे SO4 में यूँ नहीं करेंगे सल्फर एक और OK4 करना है ऐसा आखिर में, लेकिन ट्रीट करेंगे एक ग्रुप की सूरत के अंदर। देयर इज नो वन पर्टिकुलर वे इन द बैलेंस इक्वेशन, ध्यान में रखिएगा, इसको कोई भी एक तरतीब नहीं होती है, आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। सम इक्वेशन इज हार्डर टू बैलेंस देन द अदर एंड माइट रिक्वायर सम क्रिएटिविटी टू सॉल्व, ठीक है। तो एक ये फिक्स रूल कोई नहीं है, बस इधर उधर से, यानी हमने खुद आपस में बैलेंस करना है। समझ लो आप चीज़ तोल रहे हो, कभी एक चीज़ बढ़ रही है, किसी दूसरी चीज़ कम हो रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है, तीसरी चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो सबको मैनेज करके चलना है वन बाय वन करके। तो लेट स्टार्ट बैलेंस विद केमिकल इक्वेशन। चले जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक रिएक्शन दिखाया गया है जिसमें बताया है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं NH3। तो नाइट्रोजन गैस का फार्मूला N2, हाइड्रोजन गैस का फार्मूला H2 और अमोनिया का फार्मूला NH3 है। यानी इसका सबस्क्रिप्ट कहता है इसके अंदर दो एटम है, इसका कहता है इसमें भी दो एटम है, हाइड्रोजन में भी, और अमोनिया के अंदर बताता है कि नाइट्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के तीन एटम के साथ कंबाइंड है। देखने से हमें नजर आ रहा है कि नाइट्रोजन अनबैलेंस है और हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है। चलें जी, अब इसको ज़रा देखते हैं, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए, ये करना नहीं है, आप ट्राई करें, डायरेक्ट करें, ठीक है। आसानी के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक साइड लिख देते हैं ताकि आपको समझाने के लिए सिर्फ ये। अब नाइट्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट के अंदर, सॉरी सिंबल कौन कौन से हैं रिएक्टेंट में, नाइट्रोजन और
हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होने चाहिए। तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन टोटल हमारे पास चीज़ें हैं, बस 2 एलिमेंट हैं, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी, इसके अलावा तीसरा कोई चीज़ मौजूद नहीं है। आ जाए जी। अब रिएक्टेंट में कितने नाइट्रोजन हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। जैसे हमने आपको बताया 2 एटम हैं हाइड्रोजन के और 2 एटम हैं नाइट्रोजन के, 2 नाइट्रोजन के एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम हैं यहाँ पर। अब आ जाए प्रोडक्ट साइड पे, नाइट्रोजन कितना है, 1, और हाइड्रोजन कितना है, 3 एटम है। तो ये हमें नजर आ रहा है कि बैलेंस नहीं है, तो हमने क्या करना है, कोफिशिएंट बढ़ाना है। यहाँ पर ये सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं हो सकते, ध्यान में रखना। यहाँ पर कितने कोफिशिएंट, कुछ नहीं है तो 1 होता है, यहाँ पर भी 1 है। तो कोई ऐसा नंबर नहीं जो मल्टीप्लाई करे तो ये आपस में बैलेंस होना शुरू हो जाए। चलो चेक करते हैं, स्टार्ट करें। मिनिमम से मैंने आपको बताया था, सपोज मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ, सपोज, सो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, बैलेंस नहीं पॉसिबल है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और यहाँ पर फिर 4 लगाना पड़ेगा हमें। तो ज़रा छोटे से शुरू करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पे देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो यहाँ पर 1 लगाता हूँ, 3 1 ज़ा 3 रहेगा, कोई वो हो जाए, मसला हो जाएगा। फिर 2 लगाता हूँ, अगर यहाँ पर मैं सपोज यहाँ पर 2 लगा लेता हूँ, सो 2 3 ज़ा 6, 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। सो 2 3 ज़ा 6 और नाइट्रोजन भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सो अब 1 बाय 1 करके चेक करते हैं। सो ट्राई करते हैं, 2 लगा देते हैं हम यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर जैसे ही 2 लगाया इसको नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए, सो 2 1 ज़ा 2, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 3 ज़ा 6, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, 2 1 ज़ा 2, नाइट्रोजन के साथ बैलेंस हो गया। लेकिन ये 2 3 के साथ भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6 जैसे ही होगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो हमें यहाँ पर भी कुछ लगाना पड़ेगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई करें 6 हो जाए। तो सिंपल क्या लगा दें, 3 लगा दें, तो 3 2 ज़ा 6, सही है। तो ये नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। तो हमने क्या किया, 6 को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 3 लगा दिया। जैसे ही 3 लगाया तो ये प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस हो गया इस तरह, ठीक है। सो 2 रिएक्टेंट में नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट भी 2 हैं, हाइड्रोजन भी रिएक्टर साइड पे भी 6 हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी 6 हैं। तो हमने क्या किया, कोफिशिएंट बढ़ाने से इक्वेशन बैलेंस कर दी। अब जरा इस पर चेक करते हैं। यहाँ पे हैं 3 एलिमेंट, कौन कौन से, पोटासियम, के, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड पे कितने पोटासियम नजर आ रहे हैं आपको, 1, कितने क्लोरीन नजर आ रहे हैं, 1, और कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, 3। प्रोडक्ट साइड पे पोटासियम कितने हैं, 1, क्लोरीन कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यानी ये दोनों तो बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, यानी ऑक्सीजन को हमने असल में बैलेंस करना है। लेकिन जब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो हो सकता है सब इफेक्ट हो। सो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो इन सबको छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन पे ट्राई करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3, यहाँ पर कितने हैं, 2। तो कहाँ पर कम है, इस तरफ कम है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 लगा देता हूँ, सो क्या हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2, वही रहा। यहाँ पे अगर 2 लगा देता हूँ, 2 टाइम्स 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर कम हो जाएंगे। अच्छा जी, फिर क्या करें, यहाँ पे 3 लगा देता हूँ सपोज, सो 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी 6 करने के लिए यहाँ पर मैं 2 लगा लूँ अगर, तो 2 3 ज़ा 6, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो सकता है। इस तरह ट्राई करते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 लगा दिया और यहाँ पर 2 लगा दिया, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, यहाँ पर भी 3 2 ज़ा 6 हो गया, यानी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन जहन में रखिएगा, आपको मैंने बताया था कि ये 2 अगर 3 से मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब है ये सबसे हो रहा है। सो 2 1 ज़ा 2, यानी पोटासियम भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए। अब यहाँ पर तो एक एक है, फिर क्या करें, तो यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। तो जब यहाँ पर 2 लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो गया, जैसे आपको बताया था ये भी 2 हो गया इसको लगाने से, और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो अब क्या करें जी, ये टोटल 6 हो गए थे। अब क्या करें, जब 3 लगाया तो हम 6 हो गया। अब इनको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर भी 2 लगा दिया। जैसे ही यहाँ पे 2 लगा दिया तो हमारे पोटासियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी, यानी क्लोराइन भी 2 हो गए। तो इस तरह ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अच्छा जी, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं।
और बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कार्बन कितने हैं, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ पर कार्बन 1, हाइड्रोजन 6, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 1 3। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, सही है। तो यहाँ पर हमने 2 लगाया, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। देखें अब थोड़ा बड़ा करके जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा जरा चेक करते हैं। 2 2 4, यहाँ पे 4 हाँ, आपको मैं चले इस तरह बता देता हूँ पहले। यहाँ पर कितने कार्बन 2, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, कुछ कोई नहीं। तो सपोज यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, तो कार्बन तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने 6, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2, तो यहाँ पर अगर मैं 3 लगा देता हूँ तो 3 2 6, यहाँ पर तो 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 3 लगवाए तो 3 1 3 एंड प्लस 2 टोटल 5 हो गए। जबकि इसको तो हम 5 नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ 2 टाइम्स 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 3 लगा देता हूँ 3 टाइम्स 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 यहाँ पर जब हो जाएगा तो इसको 6 करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लगाते हैं चले। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने 6 लगा दिया। जैसे ही हमने यहाँ पर 6 लगा दिया तो अब क्या हुआ हमारे पास, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 1 6 और 4 2 8, ठीक है। टोटल कितने हो गए 14, यहाँ पर 7 2 14। तो कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, कार्बन यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 2 हमने यहाँ पे लगा दिया तो 2 टाइम्स 2 4 हो गया, ठीक है। तो टोटल इक्वेशन जरा आप चेक करें, 2 टाइम्स 2 4, यहाँ पर 4 1 4, कार्बन बैलेंस हो गया। 2 टाइम्स 6 12 होता है, तो यहाँ पे 6 2 12 हो गया। यहाँ पे 7 टाइम्स 2 14 होगा, तो 6 1 6 और 4 टाइम्स 2 8, सो 8 प्लस 6 14 हो गया, यानी इक्वेशन बैलेंस है। अब आ जाए इसके लिए, यहाँ पर Fe कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर कितना है 3। तो पहले ऑक्सीजन के बैलेंस Fe को बैलेंस करने, सपोज यहाँ पे मैं 2 लगाते था सपोज, ठीक है। ऑक्सीजन Fe तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूँ तो सो 2 टाइम्स 3 कितना हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 करने के लिए यहाँ पर 3 लगा देते हैं, जरा 1 बाय 1 करके करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, यहाँ पर 3 लगा दिया, सो 2 टाइम्स 3 6, 3 टाइम्स 2 6 कंप्लीट हो गया। लेकिन Fe इस 2 लगाने से Fe भी बढ़ गया, 2 टाइम्स 2 4 हो गए। तो यहाँ पे 2 के बजाय हमने क्या लगा दिया, फिर 4 लगा दिया। इस तरह इक्वेशन बैलेंस हो गई। बेटा इस तरह टोटल हमने बैलेंसिंग इक्वेशन करनी है। मैंने पहले बोला था कि ये हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है, आपने अकॉर्डिंगली इक्वेशन के मुताबिक लेके चलना है इसको। सबसे आसान सा रूल आपको जहन में रख लो कि मिनिमम से शुरू करें और फिर थोड़ा सा वो बढ़ाते जाएं कोफिशिएंट, और सिर्फ कोफिशिएंट बैलेंस होना है। प्रैक्टिस इंशाल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।